Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a roots and network based set which I've taken from previous year's SimCat, and the set says, in Adventure World theme park, visitors travel between ride stations using a network of moving walkways, each going in a single permitted direction. A very popular journey is from gate A to gate B using the walkway network shown below. Each walkway displays a ride for fare charge for using it. In addition to this, the theme park administration may choose to impose a station surcharge at any of the intermediate points P, Q, R, S, and T to regulate crowd flows. Visitor always choose the route from with the total minimum cost with the minimum total cost, and if two or more routes have the same total cost, the crowd is equally split among those routes. क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, मतलब बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन, सीधे क्वेश्चन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, द थीम पार्क decides to charge a surcharge of 3 unit at each station. At each of the station PQRS, what will be the minimum cost of traveling from gate A to gate B? The administration wants to ensure that there is no visitors use the. Question number two कह रहा है, the administration wants to ensure that no visitor use the walkaway QS and that the traffic is split equally between walkaway PQ and PR. Which of the following is a feasible set of station surcharge at PQRS in order? Question number three, the administration wishes to ensure that all possible routes from A to B carry equal visitor traffic. Which of the following set of station surcharges in order PQRS would be feasible? Question number four, if the walkaway PR becomes temporarily blocked and the administration wants equal visitor flow through all flow four stations PQR and S, then which surcharge combination PQRS would work? Question number five, if the administration wants to keep the total cost of visitor as low as possible while still ensuring equal traffic on all possible routes, what will be the cost of each route? ठीक है, एक रूट एंड नेटवर्किंग का सेट जिसके अंदर अपने को क्या कह रहा है कि पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गेट ए टू गेट बी। अब उसके अंदर दे कैन यूज पी क्यू आर एस जो ये तुम्हारे ये जो रूट्स हैं वो वॉकअवेज है, यहाँ पे ये रूट है। ठीक है, अब ये वन वे का रूट है, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा ना, द पार्क थीम पार्क विजिटर ट्रेवल्स बिटवीन द राइट स्टेशन यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ मूविंग वॉकअवेज इज गोइंग इन अ सिंगल परमिटेड डायरेक्शन। ये जो भी है वो एक ही तरफ का। अब देखो यहाँ पे ये देख रहे हो एरो दिया हुआ है, तो मतलब ए कैन ट्रैवल बी पी वाले रूट को पकड़ के क्यू तक जा सकता है और बी तक पहुंच सकता है। ये ए पी आर एस बी हो सकता है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि ए आर एस क्यू वापस नहीं जा सकता, ठीक है। और ये जो भी है वो वन वे रूट है, यहाँ पे टू वे कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं चलने वाला, ठीक है। ईच वॉकअवे डिस्प्लेज द राइट फेयर चार्ज फॉर यूजिंग इट। यहाँ पे जो साइड में दिया हुआ है ये दिया हुआ है चार्ज, मतलब ए से अगर क्यू जाते हो तो यू विल बी चार्ज विद 13 रुपीज ऐसा। क्यू से बी जाते हो तो 7 रुपीज या जो भी है। एस से बी जाने का 2 रुपीज है, ऐसा अपने को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। विजिटर ऑलवेज चूज द रूट विद द मिनिमम टोटल कॉस्ट। हमेशा जो विजिटर्स हैं वो मिनिमम कॉस्ट जिस रूट पे आ रही है वो उसी रूट को पिक करेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि किसी दो रूट की कॉस्ट अगर सेम आ जा रही है और वो दोनों मिनिमम है, इन दैट केस जो क्राउड है वो स्प्लिट हो जाएगा इक्वली। लेट्स से देयर इज रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, तीनों में अगर 10-10 रुपए कॉस्ट आ रहा है, तो लेट्स से देर आर 30 पीपल, तो 10-10-10 आ जाएंगे तीनों जगह पे। ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। हाउ टू अप्रोच दी सॉर्ट ऑफ सेट। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि जो पॉसिबल रूट्स हैं इनके वो आइडेंटिफाई करने चाहिए। अब इसके लिए क्या करो, हमेशा या तो यहाँ से लेना शुरू करो या तो यहाँ से आना शुरू करो, ठीक है। आई स्टार्ट विद फ्रॉम दिस पार्ट ना, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे पहला रूट क्या है, ए क्यू एंड बी। इसका प्राइस क्या आ जाएगा, 13, 7, 20, यानी कि 20 + क्यू होना चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके बाद रूट क्या हो सकता है, ए क्यू ऐसा हो सकता है, यानी कि ए क्यू एस और बी, यानी कि 13, 17, 19, 19 प्लस क्यू प्लस एस, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब क्योंकि यहाँ से क्यू से जो भी जा सकते थे वो एक तो इधर आ गया था, एक ऐसे करके आ गया था, तो यानी कि इस वाले रूट को पिक करके दीज टू रूट वर पॉसिबल। अच्छा, यहाँ से चले, यानी कि ए पी क्यू बी, ठीक है। यानी कि 7, 7, 14, 4, 18, 18 प्लस पी प्लस क्यू। अच्छा, इस ऐसा भी हो सकता था यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ए, पी, क्यू, एस और बी, यानी कि 11, 14, 15, 2, 17, यानी कि 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15 और 10, 7, 17, 17।
ठीक है? 17 प्लस ये P प्लस Q प्लस S, ये और ये, ठीक है? अच्छा, AP वाले सारे रूट निकाल दिए। AP का एक रूट यहाँ से भी जा सकता था, A, T, R, S और B, यानी कि ये वाला रूट। तो ये कितना आ गया? 7, 10, 16, 18, यानी कि 18 प्लस P प्लस R प्लस S, ठीक है? व्हाई एम आई राइटिंग दीज़ थिंग? बिकॉज़ इनका वैल्यू अपने को नहीं पता है। ये बोला है ना इन्होंने कि P, Q, R इसको क्राउड रेगुलेट करने के लिए ऐसा है कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। तो यहाँ पे सरचार्ज लग सकता है, वो कितना लगेगा नहीं पता, ठीक है? वो अपने को शायद यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसा क्वेश्चन पढ़ा तो आई वाज़ एबल टू सी कि P, Q, R इसका ये हर जगह पे पूछते जा रहा है, ठीक है? एंड लास्ट एक रूट अपना यहाँ पे बच गया व्हिच इज़ A, R, S और B। ये कितना आ गया? 12, 18, 20, यानी कि 20 प्लस R प्लस S, ठीक है? तो एक ये वाला आ गया, 2 ये वाला आ गया, 3, 4, 5, 6, तो कितने आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? पहला काम जो अपने को करना था वो यही करना था कि पॉसिबल जो 6 रूट है उनको आइडेंटिफाई कर लेना। अब ये सेट थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। मतलब इसमें 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे तुम्हें लगेंगे कि तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ही आसान पार्ट है। इसमें ना यही वाला पार्ट है जो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। मैनी ऑफ द पीपल आई सी दे क्रिएट 7 रूट, 8 रूट, ये ना वो डायरेक्शन को ध्यान नहीं देते। ये जो डायरेक्शन वाला पार्ट है और ये जो लाइन लिखा हुआ था कि भाई ये सिंगल परमिटेड है, ये ध्यान देना। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे कि आपको एक ही जगह से अलाउड था, मतलब एक वन वे ही जाना है। तो बहुत सारे लोग इसको रैंडमली ले लेते हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो वो एक चीज़ है जो कन्फ्यूजन का पार्ट बन जाता है, ठीक है? यू नीड टू मेक श्योर, देखो ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये लिख रखा है, ठीक है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक? तो ये देखो यहाँ पे है, तो ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, ठीक है? उसी के हिसाब से मैंने ये 6 रूट को आइडेंटिफाई कर दिया। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे थे थीम पार्क डिसाइड टू चार्ज अ सरचार्ज ऑफ 3 यूनिट एट ईच ऑफ द स्टेशन। सब पे ये 3 रुपए का चार्ज करेगा, पीक्यूआरएस पे। व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम गेट ए टू गेट पी? तो अगर लॉजिकली सोचो कि गेट ए टू गेट पी में सबसे मिनिमम चार्ज कहाँ पे होना चाहिए? एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो ये फेयर चार्ज है वो कम हो और वहाँ पे मिनिमल नंबर ऑफ तुम्हारे ये आ रहे हो, गेट आ रहे हो, ठीक है? दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि यानी कि ये 20 हो या Q हो, जैसे यहाँ हो सकता था, या 20 प्लस R प्लस S, यहाँ पे तो 2 आ जाएँगे तो ऑब्वियसली ये 26 बन जाएगा, ठीक है? अपने को ये 2 चीज़ें ध्यान देनी थी। पहला कि जहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है ये जो तुम्हारा फेयर वाला है, ये मिनिमल हो और कम से कम ये तुम्हारे जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स आ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये होना चाहिए, तो इट हैज़ टू बी 23, 23 इज़ देयर। क्या 23 से कम बना सकता हूँ? इसको मैं ऐसे वर्बली भी चेक कर सकता हूँ। 19 और 6 25, 18 और 6 24, 17 और 9 ज़्यादा है, 18 और 9 ज़्यादा है, 20 और 9 ज़्यादा है, तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 23। सिटर क्वेश्चन, मतलब एकदम तुम्हें ऐसे देखते ही निकाल लोगे आराम से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इफ नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू एंश्योर दैट नो विजिटर यूजेस द वॉकवे क्यूएस। एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि क्यूएस वाला वॉकवे यूज ना हो। अब हाउ टू कंट्रोल, आपको ये बोला हुआ है ना कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो अगर इसको कंट्रोल करना है, मतलब इसमें तुम चाहते हो कि लोग ना जाएँ, वो कब होगा? जब तुम वहाँ का जो टोटल फेयर है वो बढ़ा दोगे। ऐसा समझना ना, रूटिंग के प्रॉब्लम में ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। थोड़ा मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। जनरली इट वर्क्स ऑन 3 थिंग, या तो वो टोटल कॉस्ट पे चल रहा होता है या टोटल टाइम पे चल रहा होता है या इनके कॉम्बिनेशन पे चल रहा होता है। मोस्टली ये 2 पे ही चलता है ना, और एक क्या करेगा इसमें, बाकी चीज़ों को फिक्स कर देता है। जैसे इस वाले सेट में ना टाइम का रिलेवेंसी ही नहीं, टोटल कॉस्ट का है। अब कॉस्ट में भी ऐसा है कि अगर ए से इस जगह का फेयर जो इकोनॉमिकल है वही पकड़ोगे, महँगे वाले को तो तुम ऑब्वियसली छोड़ोगे। तो क्योंकि मेरे को ट्रैफिक कंट्रोल करना है क्यूएस वाला, तो मैं क्या करूँगा, उस वाले पाथ को एक्सपेंसिव करूँगा, ठीक है? इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि तुम ऑप्शन से जाओ। ऑप्शन में तुम्हें दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को लगा-लगा के चेक करो और देखो कि क्यूएस वाला पाथ कहाँ पे सस्ता हो जा रहा है और पीक्यू एंड पीआर वाला इक्वली करना है, मतलब उनका जो टोटल कॉस्ट है वो बराबर आ जाए। ऐसा, क्योंकि देखो पीक्यू एंड पीआर में इक्वल जाना, और इक्वल कब होता है यहाँ पे लिखा था, जब 2 और मोर रूट्स हैव सेम टोटल कॉस्ट, ये ध्यान देना। तो
पहला काम क्यूएस वाला, यानी कि ये वाले पाथ को अपने को खत्म करना है, यानी कि पाथ नंबर 2 को खत्म करना है। क्यूएस और कहाँ पे आ रहा है? क्यूएस देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि पाथ नंबर 4 को भी अपने को मैक्सिमाइज़ करना है। टोटल कॉस्ट इसका मैक्सिमाइज़ करना है, तो ये भी अपने को खत्म करना है। खत्म करना है ऐज़ इन कि मतलब इसका जो टोटल कॉस्ट है वो मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है? अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? 19 प्लस क्यू प्लस एस, इनमें से कुछ है। एंड पीक्यू और पीआर वाला जो पाथ है उसको बराबर करना है। पीक्यू कहाँ पे आ रहा है? पीक्यू यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि ये पार्ट हो सकता था। पीक्यू यहाँ पे भी आ रहा है, बट सिंस क्यूएस इज आल्सो देयर, तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता रूट नंबर 3 को, तो आई हैव टू कंसीडर रूट नंबर रूट नंबर 4 को कंसीडर नहीं कर सकता, तो आई नीड टू कंसीडर रूट नंबर 3 फॉर पीक्यू। तो रूट नंबर 3 को और इसको पीआर के साथ बराबर करना है। पीआर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, यानी कि रूट नंबर 3 और रूट नंबर 5 को मैं बराबर कर दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अपने को यहाँ पे 2 कंडीशन पे ध्यान देना है। पहला कंडीशन कि रूट नंबर 3 और रूट नंबर 5 को बराबर करना, और दूसरी कंडीशन रूट नंबर 2 और 4 को एक्सपेंसिव करना है इसके कंपैरिज़न में। ऐसा ना हो कि ये दोनों बराबर तो हो गया, बट क्योंकि ये कम महँगा है या इसके कॉस्ट ज़्यादा मिनिमम है, तो ज़्यादा जितना ट्रैफ़िक है वो यहीं पे रीरूट हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है? तो रूट नंबर 3 और 5 को बराबर करने का मतलब 18 प्लस पी प्लस क्यू, 18 प्लस पी प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 18 प्लस पी प्लस आर प्लस एस, 18 प्लस पी प्लस आर प्लस एस, यानी कि 18 प्लस पी खत्म, 18 प्लस पी खत्म। यहाँ से मेरे को क्या मिल गया? क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक? ये एक इक्वेशन मिल गया। अब ऑप्शन क्या है? पी क्यू आर एस के फॉर्म पे दिए हुए हैं। क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, मेक सेंस? बन सकता है। क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, नहीं ये तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। अब हो सकता था कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक ही ऑप्शन से मेरा काम बन गया। आई कैन क्लियरली सी कि यार क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, आर प्लस एस, आर प्लस एस नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे हो रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ से मैंने आराम से निकाल दिया। अगर ऐसा होता है कि मेरे को 2 जगह पे मिल रहे होते, समझना कि ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इन दैट केस व्हाट कुड हैव डन, आई कुड हैव आल्सो वर्कड ऑन दिस कंडीशन। ये तो एक ही कंडीशन पे काम हो गया ना इन दोनों को बराबर करके। अगर एक और ऑप्शन मिलता तो मैं उनको चेक करता भाई रूट नंबर 2 और 4 पे लगा के। ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन विशेस टू एंश्योर दैट ऑल पॉसिबल रूट्स फ्रॉम ए टू बी कैरी इक्वल visitor traffic, which are the following set of station surcharges in order PQRS would be feasible? अच्छा, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहता है कि हर जगह से इक्वल ट्रैफिक मूव करे। हर जगह से इक्वल ट्रैफिक मूव करने का लॉजिक मतलब रूट नंबर 1 इज इक्वल टू रूट नंबर 2, रूट नंबर ऐसा, रूट नंबर 1 इज इक्वल टू रूट नंबर 2 which is equal to root number 3, which is equal to root number 4, which is equal to root number 5, which is equal to root number 6। अब ये इक्वेशन में अपने को काम करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट? आपको क्या करना चाहिए? ऐसे 2 उठाओ जहाँ पे वेरिएबल कॉमन मिलता जाए और वहाँ से कर पाएँ। जैसे ये दोनों को अगर पकड़ेंगे तो एस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? यानी कि 20 प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू 19। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। हाँ, क्या था? 20 प्लस क्यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस एस प्लस 90 ना? ठीक है। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू मिल सकती है। x की वैल्यू क्या मिली? 1। यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 1। अब क्योंकि x की वैल्यू 1 मिलने का मतलब PQRS, देखो x की वैल्यू 1 नहीं है, एलिमिनेटेड। x की वैल्यू 1 नहीं है। पॉसिबली ये 2 आंसर हो सकते थे। ठीक? अच्छा, इसको कहीं और से भी इक्वेट कर लें। ऐसी जगह से जहाँ पे अपने को देखो यहाँ पे ना PQ दोनों बराबर आ रहा है, 25, 25। अपने को कहीं से R की वैल्यू मिल सकती है क्या? उस पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, R की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है? R की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। इसको किससे इक्वेट कर लें? इससे इक्वेट कर लें। ठीक है, अब देखो स्मार्ट वर्क है। यहाँ पे ना PQ की वैल्यू आपको मिल चुकी है कि P की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी मिल गई है? 5। ऑल्सो एक कोई रूट का पैसा मिल चुका है तो उसको इक्वेट कर सकते हैं। मतलब बाय दिस लॉजिक जो रूट नंबर 1 है उसका अमाउंट कितना मिल गया? 20 प्लस क्यू। 20 प्लस क्यू का मतलब 25। ठीक, रूट नंबर 1 की वैल्यू मिल गई 25। ठीक, सही ना? यहाँ पे देखो अब मैंने कैसे निकाला? ऑप्शन से निकाला है। क्योंकि मेरे को Q की वैल्यू 5 मिल गई है तो यहाँ से मैंने इसको रख के रूट नंबर 1 की वैल्यू निकाल ली 25। अब क्योंकि रूट नंबर 1 की वैल्यू 25 मिली तो इसको इक्वेट कर दूँ रूट नंबर 6 से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? R की वैल्यू अपने को निकल जाएगी यहाँ पे। कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 1 21, और R की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा ये?
है सही, ये आराम से निकल गया यहाँ पे 20 + 4 + 1, तो यानी कि ये तुम चेक कर सकते हो। नाउ यू कैन चेक ऑन एनी ऑफ द रूट 18 + p + q, यानी कि 18 और 2 + q 25, है ना? 18 + p + r + s, 18 + p + r + s, यानी कि 18 2 20 + 4 + 1 25, ठीक है? सो ऐसे सेट अब नाउ ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग जब ये क्वेश्चन जब मैं क्लास में भी सॉल्व कराता हूँ, तो पीपल जनरली आस्क कि सर अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो ऑप्शन देगा, है ना? इफ एंड बट की बात मत करा करो। हमेशा याद रखना, कुछ सेट ऐसे हैं जिनको ऑप्शन से ही किए करना सबसे ज़्यादा फिज़िबल होता है और वो पेपर सेटर उसी तरीके से उसको डिज़ाइन भी करता है। वो आपसे कुछ भी रैंडम नहीं पूछना शुरू कर देगा कि चलो आओ यार कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ तूफ़ानी कर लेते हैं, वो नहीं करने वाला। वो आपको ऑप्शन देगा और ऑप्शन से आराम से निकालो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इफ द वॉकअवे पीआर बिकम्स, अच्छा नया पूरा है ना? इफ द वॉकअवे पीआर बिकम्स टेम्परेरी ब्लॉक्ड, अच्छा टेम्परेरीली ब्लॉक्ड का मतलब अब देखना ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में थोड़ा फ़र्क है ना। टेम्परेरी ब्लॉक का मतलब ये रूट अवेलेबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहता था कि ये रूट अपने को कम मतलब यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तो वो कैसे कर रहे थे? हम उसका प्राइस बढ़ा ले रहे थे। बट यहाँ पे टेम्परेरी ब्लॉक का मतलब ये रूट एक्जिस्ट ही नहीं कर रहा। यानी कि मेरे लिए ये वाला रूट एक्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, रूट नंबर 2 एक्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि मेरे लिए ये वाला रूट भी एक्जिस्ट नहीं करेगा। यानी कि रूट नंबर 2 और रूट नंबर 4 अब मेरे लिए एक्जिस्ट नहीं कर रहा है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स इक्वल ट्रैफिक through all four PQRS. अच्छा, and administration wants equal visitor flow through all four station PQRS and with surcharge combination is would work. ठीक है, क्वेश्चन का पहला कंडीशन कह रहा है कि पीआर को तुमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है? ओ सॉरी, ये पीआर ब्लॉक हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो यानी कि रुकना, मैंने ना क्यूआर वाला ब्लॉक मार दिया था। पीआर कहाँ पे है? पीआर है तुम्हारा ये वाला पार्ट, ठीक है? और कोई पार्ट नहीं है, बस एक ही पार्ट है ना, मतलब रूट नंबर 5 तुम्हारा ब्लॉक हो रहा है, ठीक? पीआरए ब्लॉक हो रहा है। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ये जो तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहता है कि पीआर वाला रूट ब्लॉक हो जाए, यानी कि ये रूट ब्लॉक हो गया, ठीक है? एंड एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स इक्वल विजिटर फ्लोज थ्रू ऑल 4 स्टेशन। यार ये क्या चीज़ है? इक्वल विजिटर थ्रू ऑल 4 स्टेशन, मतलब अगर 100 लोग पी से गए, तो 100 लोग क्यू से भी जाएँ, 100 लोग आर से भी जाएँ, 100 लोग एस से भी जाएँ। अगर 50 इधर से गए तो 50 चारों जगह से जाएँ। ऐसा नहीं हो सकता कि यू हैव 100 पीपल फ्रॉम पी, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पी फॉर पी 50 फ्रॉम क्यू, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है और ये तुम्हारा एक्चुअल में 2003 या 2004 का पेपर है, उससे ही इंस्पायर्ड ये सेट है, वहाँ पे ये पूछा हुआ था, ठीक है? कैसे करना है? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रूट बनाना पड़ता है। आपको कोई ऐसे 2 रूट को पकड़ के काम करना पड़ता है, जिसके अंदर आपके सारे स्टेशंस 1-1 बार या 2-2 बार या 3-3 बार आ जाए। ठीक है? मतलब कैन आई थिंक ऑफ कि 20 प्लस क्यू को किसी के साथ कंबाइन कर दूँ? 20 प्लस क्यू को मतलब ऐसी जगह से कर लूँ जहाँ पे क्यू के अलावा बाकी चीज़ें आ जाएँ। पीआरएस आ सकती हैं, ठीक है? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, आपने ये तो ब्लॉक कर लिया, तो आई कैन नॉट टेक 20 प्लस क्यू वाला रूट। मैं रूट नंबर 1 और रूट नंबर 5 को इक्वेट कर सकता था। मतलब मैं ऐसा करता कि रूट नंबर 1 और 5 को बराबर करता, मेरे को कुछ वैल्यू मिल जाती और मैं सारा ट्रैफिक इन्हीं दोनों से रीरूट कराता। तो क्या होता है कि 200 लोग होते हैं जिसमें से 100 लोग रूट नंबर 1 से जाते हैं, यानी कि क्यू स्टेशन से जा रहे होते और 100 लोग यहाँ से जा रहे होते, पीआरएस से जा रहे होते। तो मेरी कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती। बट प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ये रूट तो फँसा हुआ है, आई कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस रूट। अच्छा, रूट नंबर 2 को किसी के साथ कंबाइन कर सकता हूँ, क्यू प्लस एस, तो आई नीड टू हैव कोई ऐसा स्टेशन जहाँ पे अपने को और कुछ मिल जाए। क्यू प्लस एस का मतलब पी और आर एक बार आना चाहिए। क्या कहीं पे आ रहा है? यहीं पे आ रहा है फिर से पी और आर, ठीक है। और कहीं आ नहीं रहा है। अच्छा, कैन आई टेक पी प्लस क्यू? इसको मैं कर सकता हूँ किसके साथ कंबाइन? रूट नंबर 6 के साथ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी मेरे को दिखी, रूट नंबर 3 और रूट नंबर 6 को मैं कंबाइन कर सकता हूँ। अब समझना, अगर मैं इन दोनों को बराबर करूँगा, ठीक है, और इनको मैं सबसे इकोनॉमिकल भी कर दूँगा कंपेयर टू ऑल द 6 रूट, तो क्या होगा? तो होगा क्या कि भाई सारी जनता रूट नंबर 2 1, 2, 4, 5 ये जो बाकी 4 रूट है वहाँ पे नहीं जा रही होगी क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। सारी क्राउड कहाँ पे डिवाइड हो जाएगी? रूट नंबर 3 और 6 से। उससे क्या हो जाएगा, रूट नंबर 3 पे 100 लोग P प्लस Q से गए और 100 लोग R प्लस S से गए। तो सारी कंडीशन मेरी सैटिस्फाई हो जाएगी, ठीक? अच्छा, क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? 17 प्लस P प्लस Q, इसके अंदर क्या मिसिंग है? R मिसिंग है। कहीं पे ओनली R मिल रहा है? नहीं। यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको कंबाइन नहीं कर सकते। जैसे सम पीपल में से सर रूट 4 और रूट 6 को कंबाइन कर लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ये समझना।
P एक बार आया, Q एक बार आया, R एक बार आया, बट S क्या होगा? 2 बार आ जाएगा। तो मतलब लेट्स से हाइपोथेटिकली ये लोग हैं, 100 यहाँ से गए और 100 यहाँ से गए, तो क्या होगा? S से आपको 200 लोग जाते हुए दिखाई देंगे। सो बाय दैट लॉजिक वी कैन नॉट टेक दिस पॉसिबिलिटी। रूट नंबर 5 लेना नहीं, रूट नंबर 6 को मैंने कंबाइन कर लिया। तो आई नीड टू चेक ऑल द केसेस और उसके बाद आई नीड टू डिसाइड कि मेरे को कौन-सा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रूट नंबर 3 और 6 को डिसाइड कर लिया कि यही मेरा बनेगा। ठीक है? अब और रूट नंबर 3 को पहले बराबर करें। ठीक है? बराबर कैसे करा जाए? ठीक? मान लो 200 लोग हैं, 200 में से क्योंकि ये दोनों बराबर होगा और इकोनॉमिकल होगा, तो 100-100 स्प्लिट हो जाएँगे। अब इनको बराबर करने का मतलब 18 प्लस P प्लस Q इज़ इक्वल टू 20 प्लस R प्लस S। 18 प्लस P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू 20 प्लस R प्लस S, यानी कि P प्लस Q इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस R प्लस S, ऐसा। ठीक? ये पॉइंट सही है? अब ये वाला चीज़ कहाँ पे ऑप्शन में सैटिस्फाई हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है? PQRS उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है। सोचो पेपर सेटर कितना तुमसे मतलब स्ट्रैटेजिकली तुमसे काम करवा रहा है। उसको पता है कि ज़रा-सा तुमने ढंग से मेहनत करी तो सब चीज़ें तुम्हें दिखाई देंगी। P प्लस Q इज़ इक्वल टू R प्लस S, यानी कि P प्लस Q इज़ इक्वल टू R प्लस S। देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर दिख गया। P प्लस Q इज़ इक्वल टू R प्लस S, 2 दिन 5 नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। P प्लस Q इज़ इक्वल टू R प्लस S नहीं आ रहा। P प्लस Q इज़ इक्वल टू R प्लस S, यार ये भी बन रहा है। यानी कि नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1 और 4 दोनों हो सकता था। अब क्या करा जाए? अब चलेंगे हम इस वाली कंडीशन पे। अपने को क्या देखना था कि भैया आपको बाकी रूट से उसको सस्ता भी तो करना पड़ेगा, तभी तो बाकी लोग ट्रैवल करेंगे। ऐसा ना हो कि भाई ये मैंने बना तो दिया बट इससे इकोनॉमिकल रूट कोई और मेरे को मिल रहा है तो सारी जनता तो वहाँ पे चल देगी। ठीक है? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू चेक कि क्या-क्या बन रहा है। तो मेरे को चेक करने के लिए क्या बनेगा? थोड़ा जगह बना लेता हूँ। मैंने क्या करा? ऑप्शन 1 और 4 के हिसाब से चलते हैं। तो देखो इसका प्राइस क्या होगा? AQB यानी कि 20 प्लस Q, 20 प्लस Q यानी कि इसका आ जाएगा 21 और इस वाले केस में आ जाएगा 24। ठीक है? 19QS रूट नंबर 2 का 19QS, Q और PQRS, Q और S यानी कि 22। ठीक है? यानी कि Q और S 19 4 23 और 2 25। ठीक? अच्छा 18PQB, 18PQB, 18P और PQB मतलब 18 4 22 और 1 23 और 18 4 22 और 23। यार यहीं पे तो आंसर मिल गया अपने को। अब ये देखो, ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑप्शन नंबर 1 से जाते तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल रूट नहीं है। देखा? अब क्या होगा कि अगर हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं तो सबसे इकोनॉमिकल रूट क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है और कंडीशन क्या बोली थी? हमेशा लोग कहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं? जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम है। अगर ऑप्शन नंबर 1 पिक करेंगे तो कॉस्ट तो हमारा 1 वाला हो गया ना। कॉस्ट रूट नंबर 1 पे फिर तो तुमने ये जो मेहनत करी वो तो सब खत्म है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हैज़ टू बी करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट 3 और रूट 6 में इकोनॉमिकल भी है, कंपेयर टू ऑल द रूट्स बराबर भी है, तो उसमें सारी ऑडियंस स्प्लिट हो जाएगी ताकि आपको इक्वल ट्रैवल होते हुए दिखेगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लर्निंग के हिसाब से। अ, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप ये वाला आंसर नहीं फिगर आउट कर पाए हो, ठीक है? नाउ लेट्स जंप टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 5 बोला if the administrator wants to keep the total cost for visitor as low as possible while still ensuring equal traffic on all possible route, what will be the total cost of each route? मिनिमम कब होगा यार जब तुम्हारे पास जो ये सरचार्ज लग रहा है वो हर जगह पे ज़ीरो हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, क्या कह रहे हैं? इफ एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू कीप द टोटल कॉस्ट फॉर विजिटर एज़ लो एज़ पॉसिबल व्हाइल एन्श्योरिंग दैट इक्वल ट्रैफिक मूव्स थ्रू ऑल रूट्स। अगर सब जगह पे सरचार्ज ज़ीरो कर दोगे, तो यार लेकिन सबका ना प्राइस ऊपर-नीचे हो जाएगा। तो उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि तुम्हारे पास ये जो इक्वल ट्रैफिक मूव करने का लॉजिक है वो खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन से चलें, ऑप्शन में मिनिमम क्या है? ठीक है, ऑप्शन में मिनिमम क्या है? 21 यूनिट। लेट्स चेक विद द ऑप्शन। अगर मैं 21 यूनिट लेता हूँ, इस केस में मेरे को Q क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को S क्या मिल जाएगा? S भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि Q प्लस S। मेरे को P क्या मिल जाएगा? 18, P मिल जाएगा मेरे को 2, 18 प्लस 2 प्लस 1।
ठीक है? मेरे को आर क्या मिल जाएगा? आर क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब इन चारों केस में कोई भी टोल ऐसा नहीं है जिसमें माइनस वैल्यू आ रही हो। दिख रहा है ना आपको? क्यू है, Q1, SB1 है, PB2 है, RB0 है। अब मैंने देखो क्या करा है, मैंने ये रूट को पकड़ा था, ये रूट को पकड़ा है और ये रूट को पकड़ा है एंड ये लास्ट ये वाले रूट को। सो आई हैव कंसीडर्ड 4 रूट, रूट नंबर 1, 2, 3 एंड 6। अब क्या करना है, रूट नंबर 4 और 5 जो मैंने नहीं कंसीडर किए उनमें इन वैल्यू को लगा के चेक करना है कि क्या मेरा 21 यूनिट एग्जैक्टली बन भी रहा है। देखो रूट नंबर 4 पे लगाता हूँ, 17 प्लस P 19, Q 20, S 21, परफेक्ट। रूट नंबर 5, 18 प्लस P 20, R 20, 20 रह गया, S 21, यानी कि बन रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? Moderate से डिफिकल्ट सेट मतलब फॉर डिफिकल्ट फॉर समवन हु हैव नेवर ट्राइड रूटिंग ए नेटवर्क एंड मॉडरेट फॉर समवन हु हैव ऑलरेडी ट्राइड सच सेट्स। उनके लिए इसमें बस क्वेश्चन नंबर 4 था जो ट्रिकी था, बट लर्निंग के हिसाब से ये बहुत बढ़िया कांसेप्ट का सेट। ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग।